یہ طلبہ تنظیم کے احتجاج کی جامعہ کراچی میں طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ طلبہ تنظیم نے کلاسز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے باہر مظاہرے کا بھی اندیا دے دیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ کراچی کے طلبہ کا غصہ کم نہ ہوا، 7ویں روز بھی احتجاج جاری۔ طلبہ الائنس کی جانب سے جاری احتجاج شدت اختیار کرنے لگا ہے۔ طلبہ تنظیم کی جانب سے جامعہ کراچی میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ طلبہ نے فیسوں میں اضافے کی فوری واپسی اور تباہ حال ٹرانسپورٹ سسٹم کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں پر پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، اور ہم طلبہ ہے تو ہم جتنا ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ پورا امن کریں، کیونکہ ہم طلبہ ہے۔ طلبہ کبھی بھی یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے نقصان ہو کسی کو بھی، تو ہم اپنے رائٹس کو لینے تک یہاں پر پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ایسا سچویشن جاری رہے گا اور کلاسز ہمیشہ بائیکاٹ رہے گا۔ جی، ہم جب تک ہمارا حقوق ہم تک نہیں پہنچ پاتا، ہمارے جو یہاں پہ ہم نے جو مسائل رکھے ہیں اس کو حل نہیں کیا جاتا، تب تک ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا، اور ہم تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چاہے ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا پڑے، یہاں پہ ہمیں ہڑتال کرنے پڑے، ہم تنظیموں کے بالکل ساتھ دے رہے ہیں تاکہ اپنے حقوق کے حق کے لیے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ طلبہ نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ مطالبات منظور ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ فیسوں میں اضافہ نامنظور، جامعہ کراچی کے طلبہ کا کلاسز کا جزوی بائیکاٹ۔ 7ویں روز ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لیٹ فیس ختم کرنے اور جامعہ کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاجات، طلبہ نے واجبات ادا نہیں کیے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے، سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ، اور اہم میٹنگ بھی ہونے جا رہی تھی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہو گئی ہے کیا؟ بالکل، دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی کے ایڈمن بلاک کے بالکل اندر، اور اگر میں آپ کو آج کی صورتحال کے حوالے سے میں بتاؤں تو طلبہ الائنس کی کال پر آج جو ہے طلبہ و طالبات کی بہت بڑی تعداد جو ہے ایڈمن بلاک کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس وقت احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور طالب علموں کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے جو کہ گو وی سی گو کے نعرے جو ہے وہ یہاں پر لگائے جا رہے ہیں، جبکہ طالب علموں کے ہاتھوں میں جو بینرز ہیں وہ بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ 6 روز سے طلبہ الائنس کی کال پر تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں جامعہ کراچی میں سراپا احتجاج تھی، اور ایڈمن بلاک کے باہر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا تھا۔ گزشتہ 2 روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں طلبہ الائنس کی جانب سے جو احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے تو اس میں شدت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز بھی طلبہ وہ طالبات جو ہے وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے باہر انہوں نے احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ اس سے ایک دن قبل جو ہے سلور جوبلی گیٹ پر بھی طالب علموں کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت ایڈمن بلاک کے اندر ایک جانب جو ہے طالبات جو ہے اپنے حق کے لیے جو ہے آواز بلند کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو دیگر جو طالب علم ہے وہ ہاتھوں میں بینرز آویزاں کیے جو ہیں اپنے حق کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو مطالبات کے حوالے سے بتاؤں تو ان کے یہ مطالبات ہیں کہ جو ری ایڈمیشن کے نام پر کراچی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے طالب علموں سے جو پیسے جو ہے وصول کر رہی ہے تو اس کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ طالب علموں کا یہ کہنا ہے کہ بھاری بھرکم فیسیں ہیں، اور مہنگائی کے دور پہ جہاں پر سیمسٹر فیس جو ہے دینا مشکل ہو رہی ہے، تو اس میں ری ایڈمیشن کے نام پر اگر پیسے جو ہیں لگا دیے جاتے ہیں تو وہ کہاں سے بھرے جائیں۔ جبکہ دوسرا اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو بسز ہیں جو کہ پوائنٹس ہیں اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے۔ طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے، بسوں کی تعداد کم ہے، اور اس وقت اگر میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملازہ کر کے دکھا سکے کہ یہاں پر طالبات جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ہاتھوں میں بینر جو ہے وہ بھی آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ خراب انفراسٹرکچر، خستہ حال بسیں اور فیس کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو دکھائیں کہ ہاتھوں میں جو بینرز ہیں وہ بھی آویزاں کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ طلبہ تنظیم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جب
जबकि दूसरी जानिब भी अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर जो दीगर तालिब इल्म हैं वो सरापा एहतजाज हैं, हाथों में बैनर्स आविज़ा किए हुए हैं और ये एहतजाज जो है इस वक्त मेन एडमिन ब्लॉक जामिया कराची के अंदर जो है ये एहतजाज इस वक्त रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अपने हक के लिए आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। तहम जामिया कराची की इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो ऑफिशियल उन्होंने कोई इस वक्त स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 अरब रुपए जो है वो वाजिबुल अदा हैं और 18,000 तालिब इल्मों के जो पैसे हैं वो वाजिबुल अदा है, जिससे यूनिवर्सिटी को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। तलबा अलायंस के कुछ नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट के बाहर भी कल आप लोगों ने एहतजाज किया, आज मुज़ाकरात भी होने जा रहे थे वाइस चांसलर साहब के साथ, क्या वो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे, कब होंगे? जी, जैसे आपको पता है कि कल हमने जो है तलबा अलायंस के साथ मिल के और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वीसी साहब के रूम के बाहर एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, जो रात 9 बजे तक वीसी साहब की मौजूदगी तक वो चलता रहा। लेकिन हमारे को उस दौरान बुलाया गया और उसमें जब हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात की तो उन्होंने सिर्फ हमें एक ही डिमांड के ऊपर कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो सिर्फ कि मैं आपको पॉइंट्स की सहूलियात मुहैया कर दूंगा और 2 पॉइंट्स आपके लिए मैं नए मंगवा दूंगा, उसके लिए मैं लेटर दे दूंगा। लेकिन जब हम फीसिस पे आते थे तो वो बात को कहीं और ले जाते थे, महंगाई की तरफ और इसकी तरफ। तो हमने उनसे बार बार ये कहा कि सिंध के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी 50% ज़्यादा फीस ले रही है। जहाँ पर 40,000 एक डिपार्टमेंट की फीस है, वही फीस आपके यूनिवर्सिटी के अंदर 100% क्यों है? मतलब अगर 50,000 कोई दे रहा है तो यहाँ पर 1 लाख क्यों दे रहा है? दे रहा है तो यहाँ पर 1 लाख क्यों दे रहा है? मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि यहाँ पर अभी भी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कुछ तालिबात से भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और असातिज़ा का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाह और हाउस सेलिंग फौरी अदा की जाएगी। एहतजाजी मुलाजमीन के खिलाफ जारी शोकॉज नोटिस भी वापस लिए जाएं। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे मोहम्मद हमाद से। आज वफाकी उर्दू जामिया और अब्दुल्ला कैंपस और जो है गुलशन कैंपस के जो असातिज़ा और मुलाजमीन हैं वो अपनी जो है हाउस सेलिंग और तनख्वाह ना मिलने पर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त जो है वो जामिया की जो एडमिन ब्लॉक के सामने मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ मर्द असातिज़ा मुलाजमीन जबकि ख़वातीन जो असातिज़ा हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और अपने हक़ के लिए जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं। 6 माह की जो है वो हाउस सेलिंग, 3 माह की तनख्वाह और जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन जो है वो भी रोकी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं ये अंजुमन असातिज़ा के, रोशन साहब। हम उनसे बात करते हैं। रोशन साहब, हमने देखा कि पिछले 2 माह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं लेकिन आपको आपका हक़ नहीं दिया जा रहा। आपने पिछले हफ्ते भी जो है HEC के दफ्तर के बाहर भी ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन HEC के चेयरमैन या डायरेक्टर की जानिब से भी कोई जवाब आपको जो है नहीं मिला। तो कब तक इस तरह चलता रहेगा और आखिर क्या वजह है कि क्यों आप लोगों की तनख्वाह जो है वो नहीं रिलीज़ की जा रही? वाइस चांसलर जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है इस मामले पर। देखें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे एहतजाज की कवरेज कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम HEC के दफ्तर के बाहर भी गए, हमने वहाँ पर दरख्वास्त भी जमा कराई, लेकिन उसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि जो HEC है वो भी सरकारी जामियात के हवाले से कोई सीरियस रवैया नहीं रखती हैं। मतलब उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आया कल को तलबा तालबात रोडों पे निकलेंगे, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है। और ना ही हमारे मिनिस्ट्रीज़ को और अरबाब अख्तियार को या हमारे प्रेसिडेंट हाउस जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको इस बात की परवाह है। तो लिहाजा देखें, हम तो ज़ाहिर बात है अपने हुकूक के लिए बात करते रहेंगे। जहाँ तक बात हमारे वाइस चांसलर की है, उनका रवैया भी हमें गैर संजीदा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अक्सर औकात इस वक्त क्योंकि जामिया में दाखिलों का टाइम है, ज़रूरत ये है कि वो वाइस चांसलर यहाँ बैठें और हम सबको मिला के कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले हों। बहुत शुक्रिया। रोशन अली हमारे साथ मौजूद है जो कि अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला कैंपस के। इनका ये कहना है कि हमारे साथ ना सिर्फ असातिज़ा और मुलाजमीन बल्कि जो है स्टूडेंट भी जो है इनके साथ जो एहतजाज है उसमें खड़े हो सकते हैं अगर हमारे इनके मुतालबात नहीं माने गए। इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम गवर्नर हाउस तक भी जाएंगे। अब देखना है कि जितने भी ये मुजाहिरीन जो टीचर्स मुजाहिरीन हैं या फिर मुलाजमीन हैं, कुछ इसमें से मुजाहिरीन ऐसे हैं जो कि रेंटों पर रहते हैं और उनको अपने जो घरों के रेंट है वो भी अदा करने हैं, लेकिन 6 माह की
जो हाउस सेलिंग रुकी, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है और इनका ये कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम इसी तरीके से एहतजाज अपना जारी रखेंगे। जी। दहाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मुतासर होने वाली लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ की इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था, जिसके बाइस 72 इंच MS की लाइन नंबर 5 मुतासर हो गई थी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा अब तक कितना काम मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, कल सुबह जो कि इलेक्ट्रिक के अचानक ब्रेकडाउन के बाइस लाइन नंबर 5 वाटर कॉर्पोरेशन की मुतासर हुई थी। 72 इंच की 2 मुकाम से जो है वो फटी थी। ब्रेकडाउन के बाइस उसका काम जो है वो बताया जा रहा था कि 16 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसको देखा गया कि 30 घंटे लगे उस लाइन की मुरम्मत करने को। लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 2 मुकामात से लाइन मुतासर हुई थी, दोनों मुकाम से जो है वो मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुताल्लिका एक्सचेंज की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे मजीद दरकार है। लाइन को चार्ज किया जाएगा। लाइन को चार्ज करने के बाद जो है वो कराची की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। दहाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को 520 MGD पानी की सप्लाई जो है वो यौमिया जारी रहती है, जिसमें से एक लाइन के मुतासर होने से 60 MGD पानी जो है वो रुका था कराची सप्लाई का, जिसको दोबारा से जो है वो लाइन की मुरम्मत करने के बाद जो है वो लाइन चार्ज की जाएगी और वो पानी भी बहाल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। नाज़रीन, कराची पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग ने मफरूर और इश्तिहारी मुलज़मान का डाटा अपग्रेड कर लिया है। ईस्ट जोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चंद माह में 2500 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया। मज़ीद जानते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों और दीगर जुराइम के सद्देबाब के लिए जहां ऑपरेशन पुलिस अपना काम कर रही है, उसी हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भी कार्रवाइयां ज़ोर शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपेट साहिबा के साथ, जिन्होंने 3 माह के दौरान में 2500 से ज़ायद मफरूर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। उन्होंने और उनकी टीम ने और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ कार्रवाई में दीगर मुलज़मान भी गिरफ़्तार किए हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और मजमूई तौर पर कितने मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं और क्राइम का रेशो कम हुआ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अलीना, ये बताइएगा कि हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन ईस्ट में काफ़ी काम हो रहा है, तो उसी हवाले से हम मिलने के लिए भी आए हैं आपसे। कितने मुलज़मान गिरफ्तार किए गए हैं 3 माह के दौरान में और किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी ये क्योंकि IG साहब का विज़न है कि वो इन्वेस्टिगेशन विंग को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ऑपरेशन पुलिस के साथ साथ मिलके। और DIG ईस्ट असफर महेसर का विज़न भी है कि इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और SIUs को भी स्ट्रेंथन किया जाए। उसमें हम लोगों ने अगर डकैत और रॉबर्स की बात करें तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट थानों में, क्योंकि ईस्ट का एरिया बहुत वसी है, 18 थाने फॉल करते हैं, तो ओवर 1000 जो हैं डिफरेंट केसेस में रॉबर्स और डकॉइट्स को अरेस्ट किया गया है। जो हमारे पास मफरूरान थे उनको अरेस्ट भी किया गया, कोर्ट रिकॉर्ड को अपडेट भी कराया गया, स्ट्रक ऑफ भी कराया गया। उसमें हमारा नंबर 2500 से प्लस है। उसके साथ साथ 3000 से ज़ायद केसेस का भी खराज किया गया जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस थी, जिसकी वजह से साइल को काफ़ी ज़्यादा जो कंप्लेनेंट्स थे उनको तकलीफ़ भी पेश होती थी और थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। उस वजह से हमने इंश्योर की कि केसेस का स्विफ्ट डिस्पोजल हो, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल भी किया जाए। जो हमारे पास प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं उस नंबर में भी कमी लाई गई है। जो हमारे पास ओवर 300 प्लस हमने उनको भी स्टॉक ऑफ कराया है और उनको भी अरेस्ट किया है और मज़ीद भी कार्रवाइयाँ अमल दरामद में लाई जा रही हैं। ठीक है, अलीना राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में कुछ कमी भी आई है इससे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मफरूर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया और इन्वेस्टिगेशन ईस्ट की जानिब से जो है ये मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जी। सिंध हाई कोर्ट में 12 नई कोर्ट्स और चैम्बर्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने रखा। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और वकला और दीगर भी शरीक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड एनेक्स बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पर आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने यहाँ पर 12 कोर्ट रूम्स और 12 चैम्बर का इफ्तिताह कर दी है और इफ्तिताही जो
स्टोन है वो भी ये आप देख सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। 17 अक्टूबर यानी कि आज के रोज़ यहाँ पर इसका इफ्तिताह किया गया है। ये जो न्यू ओल्ड एनेक्सी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो है पहले मुख्तलिफ दफातर हुआ करते थे, जिसमें सिंध हाई कोर्ट, सिंध बार काउंसिल का दफ्तर भी यहाँ हुआ करता था, जो कि बाद में नई बिल्डिंग में जो है शिफ्ट किया गया। नीचे भी जो है रिट ब्रांच है और दीगर ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं या दीगर जो दफातर हैं उनको एक नई इमारत में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड प्लस 5 है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर सिंध बार काउंसिल का भी दफ्तर है, एडवोकेट जनरल का भी दफ्तर है, प्रोसिक्यूटर जनरल का भी दफ्तर है। तो ये जो तमाम की तमाम बिल्डिंग है जो कि 40,000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है, यहाँ पर 12 कोर्ट्स और 12 जो है चैम्बर बनाए जाएंगे अदालत जजेस के लिए, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने भी खिताब में ये कहा था कि उनका ये देरीना ख्वाब था कि यहाँ पर जो है अदालतें बनाई जाएँ, ताकि जितनी ज़्यादा अदालतें होंगी उतनों जजेस को भी आसानी होगी और केसेस भी जो हैं जल्दी निपटाए जाएंगे। जी, कराची में एलपीजी मनमानी कीमतों में फरोख्त होने लगी। ओगरा के मुताबिक सरकारी कीमत 251 रुपये मुकर्रर, जबकि मार्केट में एलपीजी 280 रुपये तक फरोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें एलपीजी का जो मामला है वो अब तक जो है रिजॉल्व नहीं हो सका। शहर कायद में कुछ इलाकों में जो एलपीजी की दुकानें हैं वो आज भी बंद हैं, जबकि दीगर शहर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर कुछ दुकानें जो हैं, दुकानदारों का कहना है कि वो इंतजामिया के साथ मिलकर उनके जो है वो दुकानें खोल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मनमानी कीमतें जो हैं वो भी मुकर्रर कर रखी हैं। शहर के अंदर 280 रुपये फ़ी किलो का जो है वो इस वक्त एलपीजी का जो है फ़ी किलो बेची जा रही है। अगर बात करें घरेलू सिलेंडर की, जो कि 11.8 किलो का है, उसकी कीमत जो है इस वक्त 3,304 रुपये पे पहुंच गई है, जबकि सरकारी कीमत की अगर हम बात करें वो 251 रुपये है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर और तमाम खर्चे मिलाने के बावजूद ये कीमत मुकर्रर की गई है, जिसके अंदर पूरे शहर के अंदर कहीं भी 251 रुपये पर जो एलपीजी है वो फरोख्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। जबकि शहर की दीगर दुकानों में अगर ज़िला शर्की की बात करें तो उसके अंदर वही एक जवाज़ बना के जो एक शाह फैसल में वाक़या पेश आया था, उसके बाद जो क्रैकडाउन किया गया और तमाम दुकानों को जो रिहायशी इलाकों में मौजूद है वो बंद करा दी गई हैं। उनका यही कहना है, कमिश्नर कराची हो या पुलिस इंतज़ामिया हो, उनका कहना है कि शहर भर से जो दुकानें हैं वो रिहायशी इलाकों से दूर मुंतकिल की जाएँ। जबकि हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे भी जो है एलपीजी की फरोख्त इस वक्त जारी है और लोग एक 280 से लेकर 300 रुपये तक जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पे एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अयाज राना। अब बात करें शहर कायद के मौसम की, तो शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, शहर कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी, बल्कि आने वाले कल के रोज़ जो है वो ज़्यादा गर्मी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 सेंटीग्रेड जाने तक का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 सेंटीग्रेड है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 सेंटीग्रेड के मुताबिक जो है वो महसूस की जा रही है इस वक्त, क्योंकि 12 बजे का वक्त, तो इस वक्त गर्मी जो है वो अपने उरूज पर होती है और ज़्यादा जो है वो महसूस की जाती है, जबकि जो हवाएं इस वक्त चल रही हैं वो 42% किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से जो वो चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची में जो गर्मी है वो आइंदा 24 घंटे तक जो इसी तरह बरकरार रहेगी और चंद रोज़ तक आने वाली भी यूँ ही गर्मी जो है वो देखी जाएगी। जबकि बात कर लें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर कराची जो है वो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में जो है वो 7वें नंबर पर है इस वक्त, और इसी तरह जो है हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मयार जो है वो दिन ब दिन कभी ख़राब होता है, कभी बेहतर हो जाता है, लेकिन कराची को हम देखते हैं कि अव्वल तरीन नंबरों पे ही आ रहा होता है, लेकिन आज कराची जो है वो 7वें नंबर पर देखने पे आया है। गर्मी की बात करें तो गर्मी से कराची वाले जो है वो बड़े परेशान हैं। इस वक्त जो मगरिबी सिम से हवाएं चल रही है वो भी काफ़ी गर्म है और हब्स की शिद्दत जो है वो शहर कराची में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसके बायस जो है वो लोगों के मूड भी ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि सर्दियों के जो है वो महीने शुरू हो गए पर सर्दियों की जो है वो अब तक आमद नहीं हुई। तो शहर कराची वाले ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब मौसम ठंडा हो और ठंडी हवाएँ जो शहर कराची में चलना शुरू हो। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज़ के बाद मनफी रुझान है। 100 इंडेक्स 86,000 पॉइंट्स की सतह भी गंवा बैठा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज।
جی بالکل، اگر بات کریں آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے اور اس کے حوالے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو مارکیٹ میں ایک تیزی کا تسلسل قائم تھا. کافی دن سے ہم دیکھ رہے تھے مارکیٹ ایک اچھی ریلی بناتی ہوئی جا رہی تھی اور نئے نئے ریکارڈ بن رہے تھے. کل بھی مارکیٹ ریکارڈ سطح پہ بند ہوئی, 86,000 کی سطح بحال تھی. لیکن آج صبح جب ہم نے دیکھا مارکیٹ کے اوپر ایک سیلنگ پریشر ہے جس کے باعث مارکیٹ نے اپنی 86,000 کی سطح بھی گوائی اور اس کے ساتھ ہی مارکیٹ پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 300 سے زائد پوائنٹس وہ 100 انڈیکس پہ مائنس ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف صاحب, انہیں سے جانتے ہیں. اصل میں آج صبح مارکیٹ تو 150 کے قریب پلس تھی. پھر رومر یہ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ قومی اسلام کے اجلاس سے وہ معطل ہو گیا, اس کی نئی ڈیٹ بعد میں آئے گی. اس کی وجہ سے پبلک میں گھبراہٹ تھی, انہوں نے سیلنگ شروع کر دی. ابھی تک یہ نیوز کنفرم نہیں ہے کہ اجلاس کنٹینیو رہے گا یا ڈیلے ہو گیا کیا ہے. مگر جو بینکوں نے جو آج بینکوں کے اندر کافی سیلنگ پریشر تھا, ہر بینک کے اندر تقریباً مائنس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے انڈیکس کافی حد تک مائنس ہوا. اور کل فرائیڈے ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہاف میں مارکیٹ تھوڑی بہتر نظر آئے. میں انشاءاللہ مارکیٹ کا فیوچر تو اچھا ہی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں گے تقریباً 90,000 انڈیکس ہو جائے گا. مگر اس کی کریکشن بہت کمپلسری ہے. مسلسل تیزی جو یہ مارکیٹ کے لیے خطرناک ہے. جہاں کریکشن آ جائے وہاں اس کے بعد مارکیٹ میں ایک نئی ریلی چلتی ہے. اب دیکھو کہ انشاءاللہ ابھی جو نئے رزلٹ آنے شروع ہو گئے کوارٹر کے, اس کی وجہ سے مارکیٹ میں نیا انڈیکس آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے رؤف بھائی نے بتایا ایک سیاسی پریشر مارکیٹ پہ اثر انداز ہوا جس سے ایک پینک صورتحال تھی جس میں لوگوں نے اپنے شیئرز بیچے. جہاں آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے وہ ایک اچھا پرفارمنس کے ساتھ تھا تو اس کے اوپر بھی پروفٹ ٹیکن نظر آئی. تو اوور آل مارکیٹ پہ کریکشن ڈیو تھی جس کا پریشر آج ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ اس وقت تک جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ بہتر ہیں اور مارکیٹ ایک اچھی پرفارمنس دکھاتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. جی, سوزوکی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. سوزوکی GD 110S 7,000 روپے مہنگی, جبکہ نئی قیمت 3,59,000 روپے پر پہنچ گئی ہے. مزید اس پر تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے. بتائیے گا اشرف. دیکھا جائے پاکستان میں غریب عوام کے لیے مزید مشکلات ہو گئی ہیں. جو سواری تھی غریب کی, جو سوزوکی موٹر سائیکل, وہ بھی اب 7,000 روپے مہنگی کر دی گئی ہے. پاک سوزوکی نے اپنی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں 7,000 روپے کا جو اضافہ کیا اس سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. کمپنی نے اپنے ڈیلرز اور شو روم مالکان کو خط جاری کر دیا ہے. سوزوکی GD جو 110 جو ہے وہ 7,000 روپے مہنگی ہوگا, قیمت 3,59,000 روپے پر پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی سوزوکی GS 150 کی قیمت 7,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور سوزوکی GS 150 کی نئی قیمت 3,89,000 روپے پر پہنچ گئی. اور دیکھا جائے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں بھی اب جو لاکھوں روپے پر پہنچ گئی اسے مزید اب اضافہ کر دیا گیا ہے. جی اشرف, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.